मन में सत संतोख रखो, सब कर सेवा लाग, सेवा सब कुछ देत है, रविदास सेवा मत त्याग। दीन दुखी की सेव में लाग रेव रविदास, निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। धुआं तपन में का तरा, तुम तपन ही त्याग, रविदास मिले है मोक्ष धाम, सेवा ही तप आग। वचन गयो नहीं आत है, वचन गयो नहीं आत है, शीस कटा फिर आए, रविदास बचन कुंग राखिए, सिर जाए तो जाए। रविदास बचन जो दे दिए वह न जाने पाए, बचन हरे जो जगत में कछु न शेष रहे। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पए नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। रविदास रात न सोईवे दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हरजी सिमरिए छाड़ सकल प्रतवाद। प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठ्यो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के होना जाए। हरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 646ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੌਕਲੇ ਯਾਨੀ ਪਾਰਕ ਰੋਡ, ਬਰਮਿੰਗਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 646ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜੱਸੀ ਜੀ ਔਰ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ 10 8 68 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 5 ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਝੁੰਮਟ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜੋ 4 ਮਈ 5 ਮਈ ਜੋ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਖੁਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਔਰ ਦਾਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਮੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੋਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਬਰਾਗਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟ ਅਵਕਟ ਡੂਗਰ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਮੁਰਾਰ। को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे, हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन लाद्या बिख लादी संसार। उर्वार पार के दानिया लिख लियो आल पताल, जम मोहे डंड ना लगई तजिले सर्व जंजाल। जैसा रंग कसंब का तैसा एव संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कह रविदास चमार। महाराज जी ने गौड़ी बरागण दे विच प्रवचन किए हैं कि ये सच का रस्ता है, क्योंकि सच की है सतसंग, सच का साथ, सत की है, सच की है, परमात्मा है। और जो सच का रास्ता है कठिन हुंदा है और जिस भी प्राणी का मन उस कमज़ोर बैल की तरह है, बैल यानी बलद जो इस रास्ते नूं तय नहीं कर सकता तो वो कमज़ोर है। और जदों उहदा मन सुदृढ़ हो गया
और उसके मन दे विच भाव जग गए। फिर ये रस्ते, ये पत्थरां वाले रस्ते, नकीले कंडियां वाले, पानियां वाले, पहाड़ां वाले रस्ते जिहड़े बड़े मुश्किल हैं, वो सत्संग जी आसान हो जाते हैं। और फिर वो जो प्राणी है वो सच के रस्ते ते चल पैंदा है और परमात्मा के नाम का सिमरन करता है और विकारां नूं अपने मन चों कढ़ दिंदा है। पर सतगुरु जी दसदे हैं कि हे प्राणी, तेरा मन तो एक कमज़ोर बैल की तरह है, पर होना किस तरह चाहिए है। सतगुरु कबीर महाराज जी अपनी बाणी राग केदारा दे विच प्रवचन करते हैं। इस गल ते, इस प्रवचन ते मोहर लाउंदे हैं। मन कर बैल सुरत कर पैड़ा, ज्ञान गोन भर ढारी, कहत कबीर सुनहोरे संतो, निभही खेप हमारी। खेप की है, एक व्यापार है। जिस तरह सतगुरु जी ने मैं राम नाम धन लाद्या बिख लादी संसार, को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जा रहे। तो सतगुरु जी कह रहे मैं बंजारा हाँ, परमात्मा के नाम का व्यापार कर रहा हाँ। और व्यापार कर रहा हाँ, फिर जो भी प्राणी और गली गली कूचे कूचे पिंड पिंड जाके होका दे रहा हाँ कि मैं परमात्मा के नाम दे नाल लद्या होया हाँ, और जो भी प्राणी मेरे को आवे और मेरे नाल व्यापार कर लवे, और उस प्राणी का पर मन जिहड़ा आ वो बैल दी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, कमज़ोर बैल की तरह नहीं होना चाहिए। पर सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि जो मन सुदृढ़ हो गया, मन कर बैल सुरत कर पैड़ा। पैड़ा किया रास्ता, सच का रास्ता जिहड़ा जिस घट अवगट है। लेकिन इत्थे सतगुरु जी कहते अगर मन सुदृढ़ है, फिर अपने मन नू मन कर बैल, फिर एक सुदृढ़ ताकतवर बैल की तरह अपने मन नू बना लिया, और सुरत या भाव समाध, सहज समाध विच सुरत लगा के वो रास्ता जिहड़ा आ वो उसनूं सुरत बना लिया। फिर ज्ञान गोन भर डारी, फिर ज्ञान की है, परमात्मा के नाम का सिमरन ही तो है। फिर उस सिमरन दे नाल ज्ञानवान हो के फिर भर डारी, फिर भरपूर हो गया ज्ञान दे नाल। वो प्राणी ज्ञान दे नाल भरपूर हो गया। और फिर की होया, कहत कबीर सुनोरे संतो, निभी खेप हमारी। जो संत जन होंदे हैं वो भी तो परमात्मा के नाम का व्यापार ही करते हैं। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी कह रहे हैं, सुनोरे संतो, हे संत जन, मैं भी, मेरी भी निभ गई आ। मैं जो व्यापार परमात्मा के नाम का किया सी, मेरा भी संपूर्ण हो गया, निभ गया हो। फिर इसे करके सतगुरु जी कहते हैं कि मन जिहड़ा आ वो सुदृढ़ होना चाहिए है, क्योंकि तन तन जो है वो मन तन ये सुदृढ़ होने चाहिए हैं। महाराज जी अपनी बाणी च एक जगह कहते हैं कि हे प्राणी, तू माड़ा जा परमात्मा के नाम नूं विचार के तो देख, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं, कोई तप, कोई जप या कोई यज्ञ या कोई भेख बना के या कोई कन्ना विच कन्न पड़वा के मुंदरां पा के या जटा रख के या बाल कटवा के या पहाड़ां दे विच जाके जंगलों दे विच परमत के एक मुश्किल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है तैनूं। फिर उस मन नूं स्थिर करना है। तो सतगुरु जी कहते सू कछु विचारियो, सू कछु विचारियो। हाले मैं परमात्मा के नाम नूं विचारिया ही सी। सू कछु विचारियो तात है मेरो मन थिर हवे रहो, मेरा मन स्थिर हो गया। हाले विचारिया ही है, सच्चे मन तो विचारिया ही है तो मेरा मन स्थिर हो गया, भाव सुदृढ़ हो गया, पक्का हो गया, संकल्पित हो गया। मन जिहड़ा आ पक्का हो गया, भाव जग गया। फिर की कहते अगली पंक्ति च, हर रंग लागो तात है। जो परमात्मा का रंग मेरे ते चढ़ गया, हर रंग लागो तात है, मेरो वर्ण, मेरा रंग पटल प्यो, मेरा रंग ही बदल गया, मेरा अपना रंग खत्म हो गया। पिया राम रस पिया रे,
सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं राम रस पियारे ए रस बिनस गए रस और, जो ये रस या ये रंग चढ़ा लिया फिर दूसरे रस दूसरे रंग जिहड़े कि कसंभदे हैं वो खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी एक जगह प्रौढ़ता करते हैं ज्यों नलनी सुआटा गयो मन बौरा रे, ऐसो ये व्यवहार जैसा रंग कसंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो पसार। सारे ही महापुरुष इको ही गल दसते हैं, इको ही रास्ता दसते हैं कि दुनिया का रंग जिहड़ा आ ये तो बहुत फिक्का है और नाशवान है। दुनिया नाशवान है, ये संसार नाशवान है और सच की है, स्थिर की है, वो परमात्मा है, परमात्मा का नाम है और जिहड़ा कि हर जगह ना किते घट ते ना किते वध व्यापक तौर पर समाया होया है। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं सब में हर है, हर में सब है, सर्ब निरंतर सोई रे। हर जगह सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जाना साखी नहीं और कोई दूसर जानन हार सियाना। बाजी को बच रही है, बाजी को बचे, बाजी का मर्म न जाना, सांच बाजीगर, बाजी झूठ सांच बाजीगर। बाजी भावे दुनिया है उस जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते बाजीगर डंक बजाई सारी खलक तमाशे आई। यही प्रौढ़ता है। सतगुरु रविदास महाराज जी भी कह रहे हैं कि कह रविदास बाजी जग पाई बाजीगर स्यो मोहे प्रीत बन आई। तो बाजी तो जरा बाजी कर रहा है तो सच है क्योंकि उसने ये बाजी पाई है। बाजी झूठ जिहड़ी बाजी पाई है झूठ है, ये नाशवान है। एक चक्कर है कि जो भी प्राणी परमात्मा सारे परमात्मा दे ही अंश हैं कि जिस तरह गुरबाणी दे विच लिखिया है कि अपने कर्मां तो प्राणी परमात्मा तो विछड़ जाता है, फिर वो चक्करां दे विच पै जाता है। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। जोगी जति तपि ब्रह्मचारी कबू राजा छत्रपति कबू भिखारी। कहत कबीर प्रभ कृपा कीजे हार परे अब पूरा दीजे। वो परमत है सतगुरु अर्जन देव जी। किरत करम के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, चारे कुंटा दह दिश भर में थक आए प्रभु की शाम। थक गए। और सतगुरु रविदास महाराज जी बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म बिछड़े थे ए जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। सो सतगुरु जी परमात्मा के नाम का व्यापार करते हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी भी प्रौढ़ता करते हैं किनी बंसिया कांसी तांबा किनी लौग सुपारी बन गया भाव व्यापार किया। किनी बन गया कांसी तांबा, कोई तो कांसी का व्यापार करी जाता है, कोई तांबे का व्यापार करी जाता है। किनी ही लौग सुपारी, कोई लौंग का व्यापार करता है, कोई सुपारी का व्यापार करता है। किनी बन गया कांसी तांबा किनी लौग सुपारी, संतो बन गया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। सो संत जन जो हैं वो परमात्मा के नाम का व्यापार करते हैं। तो मेरी भी सतगुरु कबीर महाराज जी मेरी खेप भी जी आ, मेरी भी जी व्यापार आ वो भी परमात्मा के नाम की है। सो हर के नाम के व्यापारी कबीर महाराज जी अगे फरमा रहे हैं हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, हीरा परमात्मा हर सो हीरा छड़ के करे आन की आस। जहाँ सहस्तार में पंवर गुफा है पंवरा गूंज करे दिल दरिया हीरा लाल है गुरमुख समझ पर हीरा लाल। या फिर कह रविदास रतन फलकार रतन फल रतन हीरे जवाहरात परमात्मा का नाम। जो
परमात्मा जी खुद सतगुरु रविदास महाराज जी को पारस उन्होंने इम्तिहान लैन गए सी पारस देने वास्ते, तो सतगुरु जी ने मना कर दिता कि मैं पारस नहीं लेना। उन्होंने कहा कि पारस मोरे हर को नाम, मेरा पारस परमात्मा का नाम है। पारस मोहे हर को नाम, इस पाथर से नहीं कोई काम। ये तो मेरे वास्ते पत्थर है। सो इसी तरह जो व्यापार है परमात्मा के नाम का, रतन फल या हीरा जवाहरत, जो जिस तरह सतगुरु जी अपने श्लोक के दसते हैं, हर सो हीरा छड़ के करे आन की अस ते निर्दोष जाएंगे, सत पक्ष है रविदास। सो इसी तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कह रहे हैं, हीरा हथ चढ़िया निर्मोलक, निर्मोलक भाव जिसका कोई मुल बहुमूल्य। सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी अपने पदियां विच दसदे हैं, तन मन तन अर्पण करो बाणी जप हरमीत, सत संगत कर संत की दुष्ट त्यागो रीत, श्वास श्वास सिमरन करो जन्म अमोलक, जन्म अमोलक जीत, अमोलक जन्म है। इसी तरह जो परमात्मा है दा नाम है वो भी अमोलक है। जिस तरह हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी, साचे लाए तो सच, सच साचे लागे तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बस्ते पार चलाए पहुँचे जाए भंडारी। आपे रतन आपे रतन जवाहर मानक, आपे रतन जवाहर मानक, आपे है पसारी परम पिता परमात्मा, आपे हीरे जवाहरत आपे है। और आपे पंसारी जो ज्वेलर है वो भी आपे बनया हुआ है, परमात्मा आपे व्यापार कर रहा है। फिर आपे दह दिश आप चलावे, दसी दिशावां गुरबाणी की भाषा दे विच साध संगत जी 4 दिशावां नहीं हुंदियां, 10 दिशावां हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर, उत्तर दक्षिण। इसी तरह पश्चिम पूरब दक्षिण उत्तर 8 धरती ते आकाश गुरबाणी दे विच दर्ज है। सो दह दिश परमे या आपे आपे दह दिश आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। सो परमपिता परमात्मा चला रहा है इस संसार नूं, 10 दिशावां नूं चला रहा है। और जो प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करके, सत्संग जी सिमरन जो है वो करन दे नाल हुंदा की है कि मन भाव जिहड़े मन सुदृढ़ हुंदा, संकल्प आउंदा है कुछ मन अच्छे कर्म करन दा। सिमरन दे नाल कर्म जुड़े हुए हैं, कर्म अच्छे हो गए, जो कर्म अच्छे हो गए तो फिर विकार जिहड़े हैं घमंड, अभिमान, हंकार, ईर्खा, द्वैत भावना, क्रोध, काम, माया, सारा कुछ खत्म हो जाता है। जो बुराइयां खत्म हो गई, जिस प्राणी दे विच कोई बुराई नहीं है, फिर वो सच दे रस्ते ते चल रहा है, फिर उहदे विच नम्रता आ गई है, उसकी दुश्मनी की भावना खत्म हो गई है, मित्रता आ गई है, दोस्ती की भावना आ गई है, फिर उसके चेहरे ते अलग नूर आ जाता है। प्राणी तो वही रहिंदा है, उसकी कोई परमात्मा दे विच अभेद हो के कोई अवस्था या उसका स्वरूप बदल नहीं जाता, वही रहिंदा है। पर जिस तरह चंद्रमा पूरे संसार दे विच है पर संसार तो निर्लेप रहिंदा है, इस तरह वो प्राणी निर्लेप रहिंदा है, क्योंकि वो अपनी एक दुनिया दे विच रहिंदा है जिथे उहदे डर, उहदे भरम, उहदे जिन्ने भी वहम हैं, शंकावां हैं, सारियां खत्म हो जांदियां हैं। फिर वो निडर हो के, क्योंकि उसनूं उसदे कि फिर वो नेरे दे विच रस्सी नूं सप नहीं समझदा, क्योंकि उसको ज्ञान की रोशनी आ जाती है, उहदे डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद अपराध नहीं करता, किसी दे नाल कोई बुरा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी दे नाल कोई बुरा नहीं करता, किसी का हक नहीं मारदा, किसी दे नाल कोई धोखा नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता, कोई कुकर्म नहीं करता। फिर अपने आप ते फिर जो कोई भी प्राणी सच्चे मन तो सच्चा बन के चलता है, फिर उसके डर खत्म हो जाते, क्योंकि उसनूं उसका मन पक्का हो जाता है कि जब मैं किसी दे नाल बुरा नहीं करता तो मेरे नाल भी कोई नहीं करूँगा। सारे डर निकल गए, जो भरम हैं वो भी खत्म हो गए। सो ये सिमरन का
ਲਾਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, दीन दुखी की सेव में लाग रहे हो रविदास, और निस्वासर हर रोज निस्वासर सेवा से, केदी सेवा? परमात्मा की हर की सेव, निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। जो सिमरन करता है फिर वो दर्शनों की अभिलाषा भी रखता है। जिस तरह सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च दसदे हैं, कहा पे जो तन पे छिन छिन, की होया अगर मेरा शरीर छोटे छोटे टुकड़े में कट भी हो गया था, छिन छिन कहा प्यो की होया, जाओ तन प्यो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। अगर प्रेम चल गया परमात्मा के नाम का मेरे को ना, फिर इस गल का तो मैनू बहुत डर है। सतगुरु जी कहते हे प्राणी इस तरह की प्रीत कर ला, सच्ची प्रीत कर ला। जिस तरह महाराज जी बैराग दे विच आके परम पिता परमात्मा दे नाल जो गल कर रहे हैं, कहते माधो मोहे एक सहारो तोरा, थोड़ा ही सहारा है प्रभु जी, होर किसी का नहीं। माधो मोहे एक सहारो तोरा, तुम ही मात पिता प्रभु मेरो हौ मस्कीनत पौरा, तुम जो तुझो कवन मोहे राखे, सही कौन ने हो रहा। बाहा डंबर हो कबू न जान्यो, तुम चरण चित मोरा, अवगन सौगन दो समकर आन्यो, चौंदिश दर्शन तोरा। पारस मन मोहि रत नहीं, पारस मन मोहि रत नहीं, जग जंजाल न थोरा। कह रविदास तज सब तृष्णा, कह रविदास तज मतलब खत्म करो प्रभु जी सब तृष्णा, इच्छावां, क्योंकि जिस प्राणी की इच्छावां खत्म हो गई है ना, वो संतुष्ट है, वो सैटिस्फाइड है, वो कंटेंटेड अलॉट, जिन्हें इंग्लिश के विच असीं कह सकते कंटेंटेड अलॉट। फिर जो दुख कदों आता है, माफ़ करना संग, मैं पहला प्रवचन पूरा करा। कह रविदास तज सब तृष्णा, एक राम चरण चित मोरा, कि परमात्मा जी औगन सौगन दो सम कराने, चौंदिश दर्शन तोरा। जित्र भी देखदा थानू ही देखदा है, तुसी ही मेरे माता पिता हो, तुहाडा ही मैनू सहारा है। क्योंकि अगर तुसी मैनू छड़ दिता, मैनू रखना किन्ने आ? मेरे ਜਿਹੜੇ निहोरे आ किसने सहने आ? निहोरा सहने कि ये जदों किसी दे नाल असीं प्रीत परमात्मा दे नाल प्रीत करदे हां ते परमात्मा नू अपना मित्र समझदे हां, तो फिर निहोरे भी चलते हैं। जिस तरह जऊ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, जऊ हम बांधे मोह फास, असी तो मोह विच फसे हुए हैं प्रभु जी। जऊ हम बांधे मोह फास, पर हम प्रेम बंधन तुम बांधे, पर असी इन्ना प्रेम प्रभु जी तुहाडे नाल कीता, तुहानू अपने प्रेम च बंध लिया। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन का जतन करो। कितना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं परमात्मा जी कि इन्ना एकमिक हो जाता है, इन्ना निहोरे शुरू हो जाते हैं कि अपने छूटन का जतन करो, हम छूटे तुम अराधे। हसी छुट गया, हुण तुसी साडे तो छुटण दा जतन करो कि छुट जाओगे साडे तो नहीं, क्योंकि असी छुट गए, तुहाडा नाम सिमरन करके असी छुट गए, और तुसी साडे तो हुण छुट नहीं सकते। सतगुरु नामदेव जी भी हामी भरदे हन, कहंदे हन परमात्मा जी जदों अपने सेवकां ते खुश हुंदे आ ते की कहंदे हन कि मेरी बांदी भगत छड़ावे। जो सेवक है, अगर परमात्मा ने बंद दिता सेवक नूं, सेवक छड़ा सकता है, वो इधर उधर हो सकता है। जिस तरह कबीर महाराज जी नाम लेना भुल गए, जिद्दां हर वेले परमात्मा के नाम का सिमरन करते सी, एक बारी भुल गए, फिर उत्थे की परमात्मा ने आके याद दिलाया। किस तरह याद दिलाया? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फरे, कहत कबीर कबीर। परमात्मा जी पीछे चल रहे हैं और कबीर कबीर कर रहे हैं कि कबीर अज की गल हुई, मैनू भुल गया। सो इस तरह का अटूट प्रेम जड़ा वो सेवक का और परमात्मा का हो जाता है। सो इस करके एक बारी नामदेव महाराज जी अपनी बाणी च दस रहे हैं, जिस तरह मेरी बांदी भगत छड़ावे, बांधे भगत न छोटे मोही। जदों
कोई सेवक परमात्मा नूं अपने प्रेम बंधन च बन लैंदा है ना, फिर परमात्मा जी छड़ा भी नहीं सकते। जिस तरह सतगुरु जी भी अपनी बाणी अपने छूटन का जतन करो, या सही है कौन नहीं हो रहा, इस तरह के जिहड़े प्रवचन प्रसंग अपनी बाणी दे विच महापुरुष दसदे हन कि हे प्राणी कोई मुश्किल नहीं है, परमात्मा नूं माड़ा जिहा मिल के कोशिश तां कर, वो तो एक बहुत एक सर्वोच्च मित्र है, और कोई इन्ना मुश्किल नहीं, डरन की लोड़ नहीं है। सतगुरु जी सारे महापुरुष दसते हैं कि कुछ करके तो देख, क्यों कहा पे जो तन पे छिन छिन प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन, तुझी चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रमैया तन, संपत विपत पटल माया तन, तामे मगन ना होत न तेरो जन, तामे मगन होत न तेरो जन। जो आप जी दे सेवक हैं वो संपत्तियां माया दे विच मगन नहीं हुंदे, संपत विपत पटल माया में ताम मगन होत न तेरो जन, प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जन, कह रविदास छुटवो कवन गुण। कि प्रेम की एक डोरी जेवरी सांकल जड़ी है बन ली है, हुण ये छुट नहीं सकती। फिर जिस तरह कहते तुम जो तजो कबन मोहे राखे, सो सत्संग जी एक कॉल आई है, देखिए साडे नाल कौन जुड़े। हेलो जय गुरुदेव जी। हेलो जी जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी, कौन बोल रहे जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी की फतेह जी। कौन बोल रहे जी? कौन? गुरमुख बलिहार सिंह रंधावा। बलिहार सिंह रंधावा जी। रंधावा जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸਤਕਬਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬੇਤ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਤੀਥ ਨਹਾਈਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਏ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਡਤ ਕਹਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਬ ਹਮ ਬਾਂਧੇ मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बाधे, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। आ गल जिहड़ी आ ये कहनी किते सौखी आ, बहुत जिवें बाप नूं, बाप दा बच्चा लत्तां तो कड़ंगी पा के उहनूं कहे पे तू हुण छुट के दिखा, दस हुण बापू किधर नूं जाना तैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये शब्द साडा पंजाबी दा ना किसे छोटे मोटे नूं कह दिओ जे तेरी जैसी दी तैसी फेरती। देखो एक पिंड दा भावें लंबड़दार ही होवे, ਉਹ नहीं बर्दाश्त करदा ये गल पंजाबी दे अपनी आम है, ਉਹਦੀ जैसी दी तैसी फेरती। बिल्कुल माल जानत हो, पता है खेल का ना की आ, ये हैगा जैसी तैसी, ते नाल मनाउंदे भी आ बाबा जी, मनाउंदे भी परमात्मा तो। अब कहा करोगे ऐसी, पहला कर मेरे नाल भी जिहड़ी अगे मेरे नाल कीती आ, गाहां ते ना करेगा तुसीं किते। जी जी। आह क्या कमाल आ, इन प्रेम दी खेल कहंदे आ। इहनूं किहा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं, साज कहूं सुन लिहो जन प्रेम कीओ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ सच्चे पातशाह ने, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने तत्ती तवी ते बैठ के दिता भी नहीं। ये प्रेम की बात है, खेडां प्रेम दी। तुसीं प्रेम नाल गल करदे हो, बहुत आनंद आउंदा। गुरु साहब इन्नियां क मैं समा तुहाडा लेना सी ते बड़ा आनंद आ रहा, तुसीं गल्लां करदे हो, मैं तुहानूं सुनना, सारे सुणदे प्रेम नाल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਸੀ, जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम अराधे, माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी, मीन पकड़ फांके और काटे रांध कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तो न बिसरियो पानी, आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी धन्यवाद दुग्गल साहब जी। सिमक जी। हाँ जी धन्यवाद करें ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਮਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਮਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿਮਕ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਭ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1207 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ, ਊਆ ਅਵਸਰ ਕੇ ਹਾਉ ਬਲ ਜਾਈ 8 ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰਿ ਪਾਈ, ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਉੱਤਮ ਸੈਨ ਜਨ ਨਾਈ, ऊँच ते ऊँच नामदेव समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई, ज्यों पिंड तन तन साधन का, ज्यों पिंड तन तन साधन का, कि ये मेरे जी आत्मा आ मेरा तन है, ये सब कुछ संतां दे हवाले है। ज्यों पिंड तन तन साधन का, यो मन संत रिनाई, कि ये मन भी जोड़ा है इस संतां दे चरनां दी धूल दे बराबर है। संत प्रताप परम शब्द नासे, नानक मिले गुसाई। ये अपने आप दे विच कितना महान, कितना पावन ते पवित्र प्रवचन है। सानू ये प्रवचन जिहड़े आ अपने हिरदे विच वसाउणे चाहीदे हन, और ये वंडणे चाहीदे हन, सुनेहे देने चाहीदे हन। सो साध संगत जी,
ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ। ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ। ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥੀ ਲੰਘੇ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਥੀ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪੰਥੀ ਜੋ ਨੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਨੰਗੇ। ਇੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੱਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁੱਛ ਬਣ ਜਾ, ਕੀੜੀ ਬਣ ਜਾ, ਹਾਥੀ ਨਾ ਬਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਹੈ ਖੰਡ ਰੇਤ में बिखरी, हाथी चुनी न जाए। कहत कबीर मैं सो गुर पाया, चिंटी होए खाई। ਕੀੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਖੰਡ ਚੁਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗ। ਭਾਵ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਗ ਬੜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਮੇਟ ਆਪਾ, ਪਿਪਲ ਖਾਵੇ ਚੁਨ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੱਛ ਬਣ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥੀ ਰਾਹੀ ਜੋ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਵਰੂਪ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸੀਸਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਹਰ ਜੈਸਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਜੀਤ, ਸੋਹੰਗ ਨਾਮ ਕੇ ਭਜਨ ਸੇ दूर होए परम पीत, तू ही रटता रहे और न लावे चीत, मान पाए जिन सेव्या प्रभ सो पाए प्रीत। कह रविदास सत्संग में सव्या पद सतगुरु दीत। कि इस तरह का होना। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं कोई तकलीफ नहीं, कोई शरीर ਨੂੰ कष्ट नहीं देना। किस तरह जपना है नाम, राम जपो जी ऐसे ऐसे, तो प्रहलाद जपियो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जा तिस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे। फिर कहत कबीर पज सारंग पानी उर्वार, या इस तो पहला जड़ियाँ पंक्तियां हैं, गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, छूट गई फिर आवन जानी। कहत कबीर पज सारंग पानी उर्वार पार, दोनों एको दानी। फिर एक ही हर जगह परमात्मा है, पर उसने जो खेड रचाई है कि जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते, ऐसा ध्यान तरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी, मन पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। सोई जप जपो जो बहुर न जपना, सोई तप तपो जो बहुर न तपना, सोई गुरु करो जो बहुर न करना, ऐसी मरो जो बहुर न मरना। कि इस तरह, क्योंकि ये संसार प्राणी का मकसद आने का सतगुरु महाराज जी दसते हैं, सतगुरु कबीर महाराज जी भी दसते हैं कि मरण का है एक बारी। जे मरने
ये जगत तरासिया सो मानना गुर शब्द प्रगासिया। सतगुरु कबीर महाराज जी के प्रवचन हैं कि मरना होना इक्को बारी, क्योंकि जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इस लीला नूं खत्म करने वास्ते इक्को ही बारी मरना होवे, वो है परमात्मा के नाम का सिमरन करके सच के रास्ते ते चल के बुराइयां नूं कढ़ के एक स्वच्छ आदर्श जीवन बना के संपूर्ण करना, और फिर एक आम प्राणी तो बेहतर इंसान बनना और बेहतर तो एक महापुरुष बन जाना। ये उहदे कर्मां ते उहदे कीते हुए कारजां ते पुरुषार्थ ते संघर्ष जिहड़ा है उस ते कर्म जिहड़े हैं उस ते निर्भर है। फिर जे मानना ये जगत ये मरना ये जगत तरासिया सो मरना सत गुर शब्द प्रगासिया। फिर अब कैसे मरूं मरण को मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जान्या। मरनो मरण कहे सब कोई, सहज मरे अमर होए सोई। कहत कबीर मन पिया आनंदा, गया परम रेहा परम आनंदा। ये प्रवचन हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी भी इस तरह के प्रवचन अपनी बाणी दे विच इन्नी शीलता, क्योंकि वो दसते हैं कि यही एक जीवन है, मनुखा जीवन है जिहदे विच चेतना है, अच्छे बुरे का पता है, पुण्य पाप का पता है। अपनी प्रवचनों में दसते हैं त्रिगद जोन अचेत संभव, पुण्य पाप असोच। त्रिगद जोन रेंगण वाली जिन्नियां दूजियां जूनां दे विच जो हैं उन्होंने अच्छे बुरे का नहीं पता है, ना पुण्य का पता है ना पाप का पता। मनुखा अवतार, अवतार कहता सतगुरु जी ने मनुखा जन्म नूं, मनुखा अवतार दुर्लभ तिही संगत पोच। फिर अवतार ले लिया मनुख का, जन्म ले लिया पर संगत बुरी कर ली, उहदे नाल जन्म नूं व्यर्थ गवा दिता। फिर इस करके सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि संगत जिहड़ी आ वो अच्छी होनी चाहिए। सुख की है दुख की है, इसकी परिभाषा सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी में दसते हैं कि प्राणी या लोग सोचते हैं कि सब तो बड़ा सुख की आ महल मनारे होण और उहदे विच साल रसोई, बड़िया बड़िया रसोइयां होण, तरह तरह के पकवान पकते होण और सुंदर ते अच्छे वस्त्र होण, धन होवे, संपत्ति होवे और सिंघासन ते होवे वो प्राणी और हुक्म चलावे। इस तो बड़ा सुख प्राणी सोचता कि इस तो बड़ा सुख होर कोई नहीं हो सकता। पर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि नरपत एक सिंघासन सोया, सपने पिया भिखारी, अछत राज बिछड़ो दुख पाया, सोगत पई हमारी। पर उन्होंने तो सुख तो दुख की परिभाषा ही दस दी है। महाराज जी कहते हैं कि नरपत एक राजा सोने के सिंघासन पर बैठा है, सुख सुविधा सारा कुछ सोचता मेरे तो सुखी दुनिया दे विच कोई भी नहीं है, पर सपने सौ जाता है, नींद आ जाती है, सपने दे विच भिखारी बन के भीख मंगता है और हर पासों ठोकरां पैंदियां हैं और जदों वो ठोकर खा के डिगदा है तो उठ जाता है तो बड़ा हैरान होंदा है, सोने का सिंघासन मैं राजा हाँ, मेरे मूँह चों निकलिया शब्द तो कानून बन गया, जिन्हों सज़ा देवां जिन्हों माफ़ कर देवां मेरी मर्जी, जिहड़ी भी चीज़ है मैं मंगवा के। पर मैं तो दुख भोग्या, सपने दे विच ठोकरां खाधियां, भीख मंगी आ, भुख दे विच भोजन मंगया, मैनूं किते भीख भी नहीं मिली। फिर सतगुरु जी कहते हैं उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। ये बाजी चाहे जितना भी बड़ा प्राणी बन जाए, राजा ही क्यों ना बन जाए, पर जो सुख सतगुरु नामदेव जी का हम प्रवचन याद आ रहा है, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लईए। ये तो अपने प्रवचन में दसते हैं, अगन न दह पवन न मगने तस कर नेड़ न आवे, राम नाम तन उस सचुनी सो तन कति न जावे, हमारा तन माधो गोबिंद तरनी यह सार तन कहिए, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लईए। इस जिन्ना सुख परमात्मा की सेवा भाव सिमरन दे विच जो सुख सैटिस्फैक्शन जो संतोख या संतुष्टि मिलती है वो राज लैके भी नहीं मिलती। सतगुरु
महाराज जी प्रवचन दसते हैं। इस तन कारण शिव संकादक खोजत पे उदासी, मन मुकंद नरैण जीवा परे न जम की फांसी। सो इस तरह के प्रवचन हैं कि सतगुरु महाराज भी अपने राग गौड़ी बैरागण दे विच भी जो शब्द दास ने हुणे कीता सी, घट अवगढ़ डूगर कणा के निर्गुण बैला मर, उहदे विच भी दसदे हैं कि उर्वार पार के दानिया लिख लियो आलपताल, जम मोह डंड न लगे ते जीले सर्व जंजाल। कि मैं संसार के जंजालों छड्ड के सिर्फ परमात्मा के नाम का सिमरन किया, इस करके मैनू कोई डर नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, वक्त जो ये प्रोग्राम स्पैशल गुरपुरब ते कि 5 मार्च को कंच टीवी से पहुँचने की कृपालता करनी जी। और वक्त जोड़ा 25 सैकंड रह गया और ये अगर कुछ बाणी विच कुछ गलत अखर कह गया अनजान समझ के माफ़ करना जी। तो अपना ख्याल रखना जी, क्योंकि सेहत जी है वो भी बहुत ज़रूरी है कि जो शुद्ध है तन मन अर्पो, तन की भी गल की है महाराज जी ने। सो अपना ख्याल रखो, सेहतमंद रहो। अगले प्रोग्राम के फिर आप जी के समक्ष हाजिर होवांगा। उदों तक जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।